answer them. It's easier for me to answer them as we go rather than कि आप लोग end पे आके मुझसे first इस बारे में दोबारा सवाल पूछें. ओके जी, ये हो गया appropriate headings and identify section हो गया आपके projects का, आपके जॉब एक्सपीरियंस का, आपकी एजुकेशन का, आपके स्किल सेट का, एवरीथिंग शुड बी इन अंडर प्रॉपर हेडिंग्स. फिर allow enough white space so that page doesn't look too cluttered, and avoid too much white space as well. So your resume should not have a lot of information clustered, and neither should it have a lot of free space कि आप आराम से लिख रहे हैं और आपने बहुत स्पेस छोड़ी हुई है. दोनों चीज़ों का एक बैलेंस होना चाहिए. फिर ये use bullet points or similar information in sections. So for example, when you say that I've done Falana project, so you tell me in 3 bullet points कि what was that project, how did you contribute to that project, and what was the result. So maybe 3 bullet points per project, per job is good. So for example, you developed a website, and then you can basically say that I developed website for XYZ, and उस website से उनकी जो footsteps से it increased by 10% or 15%, and that shows your contribution, and उससे उनकी revenue generation में 20% increase हुआ. So अगर आप numerically इस information को डालेंगे, it would actually give a very good impression. Okay, so जो पॉइंट 10 एंड 11 है, मैंने पर्सनली इस पे कोई खास ज़्यादा मार्किंग नहीं की थी, बट दिस इज़ ऑल्सो वन थिंग दैट पीपल नोटिस्ड, सो देयर वर अदर जजेस ऑल्सो, कि अगर आपका एक से ज़्यादा सफ़े का रेज्यूमे है, तो आप हर सफ़े पे अपना फुटर में, ये हेडर में आपका नाम होना चाहिए और पेज नंबरिंग होनी चाहिए. मैं तो कहूँगी एट दिस स्टेज ऑफ योर करियर आपका एक ही पेज रेज्यूमे होना चाहिए. अच्छा, ग्राफिक्स एक्सेसिव तो नहीं आपने डाले हुए, एज लॉन्ग एज यू जस्ट पुटिंग योर लोगोज फॉर द कंपनीज योर वर्क एंड अ वेरी डिसेंट पिक्चर which is very professional, where you're looking straight in the camera and not posing somewhere, is good enough. Even if you don't add graphics, it's fine, to be honest. Again, number 13, no errors in setting out कि आपकी alignment ठीक है, ये तो नहीं margin से थोड़ा सा इधर है, पूरी जो आपकी CV की formation है, it is in a correct alignment. And most importantly, number 14, can it be skimmed in 30 seconds? So when you are skimming a number of resumes, आपको ऐसी कोई eye catching चीज़ होनी चाहिए जो 30 सेकंड में नज़र आ जाए उसमें. And lastly, creativity. Yes, I understand that a lot of templates are available on, Google and everything, and you can use them. It's absolutely fine. However, we expect that you have a personal touch to it. If I feel it's a run-of-the-mill one, it's not going to really impress me. Okay, so I'm going to stop here. And इस area पे किसी के भी questions हैं तो please go ahead. अच्छा, ये किसी ने पूछा हुआ है, अहमद मकसूद ने, कि as a experienced person, should I mention university project? Kindly suggest some good template website and show examples if possible. We actually did this in session. So if you go back, मुताहिर, इसके बाद आप यहाँ पे लिंक शेयर कर दीजिएगा. जो हमारा फर्स्ट सेशन था रेज्यूमे मेकिंग का, उसमें हमने टेम्पलेट्स और सारा डिटेल में डिस्कस किया था कि हाउ यू कैन मेक अ सीवी. एज फार एज योर क्वेश्चन गोज, अहमद, if you are not working actively, then it's good to talk about your university projects. But if you are have a 1 or 2 year experience, then I would suggest कि आप उसको मेंशन कर दें कि ये आपने यूनिवर्सिटी में किया था एक लाइन में. You don't really have to go in the detail. You should focus on your work वाली चीज़. Any other questions? Pick is necessary. Pick is not necessary, but if you want to put it, and it's a very professional looking, so yeah, why not? It's fine. Either way, it's fine. अब frankly कुछ लोग कहते हैं कि पिक्चर लगा लेनी चाहिए. It's just better, but it's you usually also have your LinkedIn, क्या कहते हैं उसका टाइटल होना चाहिए साथ, तो वहाँ पे पिक्चर आपकी होती है.
जी मुताहिर, should I continue? Yes, ma'am. Just one thing. Don't you Hmm. think if we add a picture in the corner of our CV, that will take up more space and we can actually put in some valuable information about us in that space? वो वैसे भी हेडर में आती है, तो उसमें आपने कोई ख़ास इन्फॉर्मेशन ऐड नहीं करनी होती। तो इट्स ओके, यू कैन पुट इट। इट वोंट टेक अप मच स्पेस। बिकॉज़ देखिए But ना, पिक्चर आपने एक कॉर्नर में डालनी होती है, वहाँ पे आप वैसे भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं डाल रहे होते। सो इट्स नॉट रियली टेकिंग अप एनी स्पेस। How to make perfect CV that gives good impression. All the points that we'll be discussing are something that will contribute to a perfect resume. However, if you need more information, Mutahir will, at the end of this session, share the link to our previous talk where we talked in detail about resume making. Okay, Mutahir, please end में ना आप यहाँ पे वो link share कर दीजिएगा, because it's recorded and it's up on our website. yes, ma'am. Sure. Yes, Haris, it is fine. As I said कि it's a personal choice. उसके आपको कोई मतलब स्टार्किंगली कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पिक्चर होगी या नहीं होगी। जो ज़्यादा कंटेंट आपका लिखा हुआ है उस पे ही ज़्यादा फ़ोकस होगा, बट अ पिक्चर कैन ऐड वैल्यू, या व्हाई नॉट? बट एज़ लॉन्ग इट्स प्रोफेशनल एंड इट्स नॉट समथिंग दैट यू आर पोज़िंग अवे। You can also raise your hands and you can ask me a question rather than just writing it down. ठीक है जी। Going to the next part, the most important one. Just give me a second. All right. Everyone in the chat, if you have any questions according to your resume, you can ask, right? या अब ज़ाहिर-सी बात है, मुझे आप लोगों की हर नाम की सीवी नहीं याद होगी, बट अगर आपका स्पेसिफिक अपने सीवी से रिलेटेड क्वेश्चन है, हम एंड पे बात कर लेंगे। यू कैन शेयर योर स्क्रीन एंड आस्क मी दैट क्वेश्चन। ओके जी। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है? फर्स्ट है तब भी आपका सीवी आगे नहीं जाने वाला। नंबर 1, कंटेंट में no spelling mistakes or obvious grammar mistakes. Yeah, like take out some time and put in your effort, check spellings, make sure that you are grammatically correct. ख़ासतौर पे जो आपकी वो प्रोफेशनल समरी होती है, कोशिश करें इट्स नॉट वेरी क्लीशेड, इट्स वेरी ओरिजिनल। आई प्राइमरीली गिव मार्क्स टू दोज पीपल मोर जिनका मुझे नज़र आ रहा था कि वो प्रॉपरली बात करें। देखें, हर बंदा कहेगा आई एम अ गुड टीम प्लेयर, यू हैव टू टेल मी हाउ यू आर अ गुड टीम प्लेयर, राइट? थोड़ा सा कोशिश किया करें कि आप अपना पर्सनल टच लाएँ। आप 3 चीज़ें ज़रूर मेंशन करें अपने करियर ऑब्जेक्टिव में। नंबर 1, द हार्ड स्किल दैट यू हैव, द टेक्निकल स्किल you have. Number 2, any soft skills. And number 3, how you can be a contribution to any organization. Or, ये 2-3 चीज़ें, and it should not be very big, it should be 3-4 line, very crisp and very, very original, to be honest. वो सेकंड है पर्सनल डिटेल, सब कुछ होना चाहिए। नेम, एड्रेस, ईमेल, फ़ोन नंबर। अच्छा, अगर आप किसी छोटे शहर से हैं, तो आई वुड एडवाइज़ कि आप लोग अगर जहाँ जॉब ढूँढ रहे हैं ना, वहाँ का कोई एड्रेस दें। बिकॉज़ एज़ अ रिक्रूटर आई विल टेल यू दैट जब हम ऑन साइट जॉब्स ढूँढ रहे होते हैं, तो अगर किसी का चीचावतनी का है या साहिवाल का है या उकाड़ा का है, यू माइट थिंक ओह दिस बंदा प्रॉब्ली इज़ नॉट विलिंग टू मूव, तो हम माइट नॉट कॉल यू गाइस। बट आप हो सकते हैं हॉस्टल वगैरह में रह रहे हो, तो जस्ट राइट लाहौर पाकिस्तान और इस्लामाबाद पाकिस्तान, कराची पाकिस्तान, या जहाँ पे भी आपके पास एक एरिया है जहाँ पे आप जॉब ढूँढना चाह रहे हैं, तो पुट दैट इन लोकेशन। लिंक्डइन ज़रूर यूआरएल डालें, बिकॉज़ आगे दौर लिंक्डइन का है, एवरीथिंग इज़ ऑन सोशल मीडिया। इसलिए वो मैं पिक्चर की भी बात करती कि आपकी लिंक्डइन पे होगी, सो यू माइट एज़ वेल वांट टू कीप इट और नॉट कीप इट। अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन डालने की ज़रूरत नहीं है आपकी। मैरिजल स्टेटस, रिलीजन, ड्राइवर लाइसेंस, ये उस एरिया में ज़्यादा ज़रूरत होती है जब आपका कोई काम हो उन चीज़ों से। स्पेशली व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर फॉरेन जॉब, तब आपको वीज़ा स्टेटस एटसेट्रा डिटेल्स डालने की ज़रूरत है, वरना यहाँ पे आपको नहीं है। अगेन वी हैव टॉक्ड अबाउट करियर ऑब्जेक्टिव
and professional summary, it has to be original. I mean, of course, you can get ideas from AI, of course, you can get ideas, but try not making it very cliched. I'm a very dynamic personality and I want to contribute to your company. Okay, sure, how is my question to you. ठीक है. अच्छा, ये वाली चीज़, अगर आपने कोई एडिशनल ट्रेनिंग्स ली हुई हैं, कोई कोर्सेज़ लिए हुए हैं, वो ज़रूर आप अपने एंड पे अपनी एजुकेशन के बाद आप डाल सकते हैं कि एडिशन ट्रेनिंग इन सैप है, किसी और चीज़ में आप उसकी ट्रेनिंग डालें और साथ आगे ईयर डालें सर्टिफिकेशन का. सर्टिफिकेशन ईयर है, अगर सर्टिफिकेशन लाइसेंस नंबर है, साथ लाइसेंस नंबर डालें. Again, if you are a freshie, I would expect your education to be on top and a detail more about your. Excuse me, ma'am, you're on mute at the moment. जी, सॉरी. प्रोफेशनल, अगर आपका एजुकेशन एक्सपीरियंस अभी बहुत फ्रेश है, तो लेट्स टॉक मोर अबाउट योर यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट्स विच आर रेलिवेंट टू योर फील्ड. एंड अपनी बस सेकेंडरी एजुकेशन से नीचे जाने की आपको ख़ास ज़रूरत नहीं है. अगर आपको 1-2 साल हो गए हैं जॉब में, तो आई वुड एक्सपेक्ट कि आपका पहले प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर एजुकेशन होनी चाहिए. और प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में टाइम आपका, it should take up more space on your resume. Additional relevant section may be included, but it's not compulsory, which is our curricular activities. For example, if you have been into debates, if you have been into some kind of sports, it's good to add to your resume in a very like bullet points, क्योंकि इससे शो करता है कि आपकी personality बड़ी dynamic है, you're a team player, etc. All these skills. जो प्रोफेशनल मेंबरशिप्स हैं, वो तो ज़रूर आप 100% डालें अपनी अंडर द सेक्शन ऑफ ट्रेनिंग्स एंड मेंबरशिप्स. दिस इज़ एक्स्ट्रा देन को-करिकुलर एक्टिविटीज़. ठीक हो गया. एनी क्वेश्चंस अंटिल नाउ? Yes, ma'am, we have one question. If we apply जी. for a job less than our experience in some good company, will it be a bad approach? डिपेंड हाउ लेस. अगर किसी ने 10 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और आप 1.5 साल या 2 साल के एक्सपीरियंस के ऊपर डाल देंगे, तो इट्स नॉट गोइंग टू गो. अगर किसी ने 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस डाला हुआ है एंड यू थिंक कि आपने किसी अच्छी कंपनी में ज़्यादा काम किया हुआ है, बेशक आपका 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, देयर इज़ नो हार्म इन एम्प्लॉइंग. इट हैज़ टू बी रिलेटिव. सो अगर 3 से 4 साल लिखा हुआ है उन्होंने और आपका एक सॉलिड 1.5 से 2 साल का एक्सपीरियंस है, यू माइट एज़ वेल अप्लाई फॉर दैट जॉब. देयर इज़ नो हार्म. All right. Do we have any more questions in the chat? Not now, ma'am. I think we can move on. Okay. Okay. Tailoring. Tailoring means basically customizing your resume according to the job you are applying for. पहले तो हम ज़रा जेनेरिक बातें कर रहे थे, अब हम सोचते हैं कि हम पर्टिकुलर किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं. इट इज़ ऑलवेज गुड. सो फॉर एग्जांपल, अगर आप एक क्या कहते हैं, आप एक डॉट नेट का एक्सपीरियंस के लिए फॉर एग्जांपल करें, तो यू माइट वांट टू हाईलाइट दैट पर्टिकुलर एक्सपीरियंस इन योर रेज्यूमे. ठीक है, तो आपका ज़रा इवन योर, सो कोशिश करें जब आप अप्लाई करते हैं डिफरेंट जॉब्स के लिए, हर रेज्यूमे थोड़ा बहुत 19-20, ज़्यादा नहीं मैं कह रही, उसको टेलर करें अकॉर्डिंग टू द जेडी दैट दे हैव पोस्टेड. इट इज़ ऑलवेज गोइंग टू वर्क इन योर फेवर. यूज़ दोज कीवर्ड जो जेडी में लिखा हुआ है. हाँ, डोंट फेक इट. अगर आपने किया हुआ है सिर्फ तभी करें, क्योंकि पता तो नहीं चल जाएगा. अगेन वही वाली बात है, अगर आपने, उन्होंने 10% मांगा हुआ है, आपने 8% किया हुआ है, दैट्स ऑल्सो फाइन. गो अहेड, ट्राई योर रिस्क. बट अगर आपको बिल्कुल कोई आइडिया नहीं है, फिर बेशक मत कीजिएगा उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस को ऐड. बिगनिंग ऑफ द रिज्यूमे हाईलाइट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ये हम बात कर चुके हैं. क्वालिफिकेशन शुड बी इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जो मैंने आपको पहले बताया था, डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए. ये नहीं कि आपने, अगर आप 4 सालों से काम करें तो जो 4 साल पुराना काम है वो सबसे ऊपर हो और जो लेटेस्ट काम है सबसे नीचे हो.
इट शुड बी इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर. जो लेटेस्ट काम है 2024 का वो ऊपर होना चाहिए, एंड देन इट गोज बैक. Provide details about the degrees. Yes, we would like to know. Just give me a second. Yeah. So, डिटेल्स अबाउट द डिग्री आपकी होनी चाहिए कि आपकी क्या क्वालिफिकेशन है, बैचलर्स हैं, मास्टर्स हैं. यूनिवर्सिटीज मैटर अ लॉट, सो डू ऐड योर यूनिवर्सिटी एंड द मेजर courses or the projects that you have done. Again, this is more relevant for those people who are fresh graduates rather than those people जो 2 से 3 साल काम कर रहे हैं, क्योंकि once you get into the job market, it is more about what experience you have rather than which college or university you went to. However, if you are in this is your first time applying, then yes, highlight more about your college projects and everything. GPA अगर अच्छा है तो डाल दें, नहीं अच्छा तो doesn't really matter. Just there's no need to put it. Of course, project placement जो होती है उसको ज़रूर ऐड करें. अच्छा, जो मैंने आपको पहले बताया था, किसी भी जब आप जॉब की डिटेल में जाते हैं ना, तो आपने बताना है दिस पर्टिकुलर थिंग. एनी मेजर रोल हेल्ड इंक्लूड जॉब ड्यूटी स्किल्स और अचीवमेंट. 3 चीज़ें वही कि आप क्या करते थे, आपके उस चीज़ से करने से क्या फ़र्क पड़ा, ठीक है, एंड हाउ यू फील वॉज एन अचीवमेंट ऑल टुगेदर. यूज न्यूमेरिकल्स, स्टैट्स इफ पॉसिबल, कि मैंने ये किया तो फुटप्रिंट इंक्रीज हो गया, मैंने ये किया तो टीम मैनेजमेंट बेहतर हो गई. And then if you get a job interview, that's another, maybe we have another session on that, they will ask you. So don't bluff it. There are again, the other thing, statement of skills or attributes begins with either a verb or action word. For example, provided high quality customer service, or an adjective, effective written communication. So use words that show your delivery. So you should be using action words. You should be using words that require, because of my particular contribution, this happened. अच्छे वर्ड्स यूज़ करें. और ये वर्ब एंड एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का मतलब होता है कि जिस चीज़ को आप ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव रखें. वर्ब होता है जो आपने एक्शन किया हुआ है. यहाँ पे एग्जांपल ये प्रोवाइडेड हाई क्वालिटी कस्टमर सर्विस, ये लिख तो दिया, हाउ इट शुड बी द नेक्स्ट थिंग. आपने वो अगले पॉइंट में बताना है कि मैं वहाँ पे प्रोवाइड करता था हाई क्वालिटी कस्टमर सर्विस. फॉर एग्जांपल अगर ये कोई बीपीओ का रोल है, और उसके बाद आप बताएं कि जी मैं इस तरह करता था कि बाय टेकिंग फ्यूअर कॉल्स और टेकिंग मोर कॉल्स एंड टेलरिंग माय कॉल्स अकॉर्डिंग टू द वॉइस एंड द टोन ऑफ द कस्टमर्स. दीज आर द टिटबिट्स दैट यू कैन ऐड. अगेन आपने कहा यहाँ पे जैसे एक पॉइंट है इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन. यू टेल हाउ इट वाज इफेक्टिव रिटन कम्युनिकेशन, दैट यू वर एबल टू कन्विंस योर क्लाइंट्स या समथिंग लाइक दैट. इट हैज़ टू coincide. So whatever you claim, you should have an example to support that claim. Again, specifically outlining individual professional skills and attributes. Again, एंड पे किसी कॉर्नर पे किसी साइड पे आप अपनी सॉफ्ट स्किल्स को हाईलाइट करें कि आई एम अ गुड कम्युनिकेटर, आई एम अ टीम प्लेयर, आई कैन वर्क अंडर प्रेशर, आई एम अ क्विक लर्नर. ये 3-4 पॉइंट्स आप करें. एंड बहुत चांसेस हैं कि रिक्रूटर आपसे ज़रूर सवाल पूछेगा, स्पेशली जो आपका फर्स्ट इंटरव्यू होता है या जो आपका लास्ट इंटरव्यू होता है, जो आपका एचआर टीम के साथ होता है. बिकॉज टेक्निकल इंटरव्यूज में तो टेक्निकल क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, बट जब आपकी लास्ट इंटरव्यूज होते हैं जो एचआर टीम के साथ होते हैं या फर्स्ट होते हैं, उसमें वो ज़रूर आपसे पूछेंगे कि हाउ वर यूर टीम प्लेयर, गिव अस एन एग्जाम्पल ऑफ अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन दैट यू थिंक. सो वट एवर यू राइट, be prepared to be asked questions regarding it. Again, if a career objective or professional summary is included, it is obviously written for a specific field discipline or professional position relating to a degree program. So, for example, अगर आप अप्लाई कर रहे हैं डॉट नेट की जॉब के लिए और आप अपनी प्रोफेशनल समरी में कोई टीचिंग एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, तो it's not going to link. And there were CVs. There was a teacher who was doing a career shift, but उसने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया था कि वो अपना करियर शिफ्ट कर रही है.
उसका सारा experience, सारी qualification was in teaching, and then she was looking to apply for jobs in the technical engineering areas, which didn't really make sense. Last 2 points, there's a logical flow and suitable ordering of the information. So for example, बार information repeat नहीं करनी. आपका पर्सनल डिटेल्स आ गई, पर्सनल डिटेल के बाद प्रोफेशनल स्किल्स एक्सपीरियंस आ गया, उसके बाद आपका एजुकेशन हो गया, साइड पे आपके प्रोफेशनल स्किल्स आ गए, सॉफ्ट स्किल्स आ गए, और एंड पे कहीं ना कहीं आप अपनी को करिकुलर ऐड कर दें या एनी अदर प्रोजेक्ट्स दैट यू हैव डन और एडिशनल ट्रेनिंग दैट यू हैव डन. दैट शुड बी योर सीवी फॉर्मेटिंग. Last but not least, keywords and phrases are included, for example, from the job ad or the employer website, which I've already told you. So try when you're applying for a specific job, उनका जेडी पढ़ें और अपनी जो भी एक्सपीरियंस है उसमें वो keywords डालें. So if they are looking for a team player, write that you are a team player, and then have a story of something where you acted as a team player. Okay, now we have some questions that I'm just going to look. Many high authority rejected resume. What type of mistake should we avoid for making resume that give good impression on high authority? What is high authority? If you're talking about high senior level, उसमें यही होगा कि there is inconsistency in your resume, और you maybe जिस जॉब के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं आपका सीवी रिफ्लेक्ट नहीं करा. इसके बाद मैं आपको एक दो और बातें बताती हूँ. I have one page resume and follow the thing that is mentioned, but still resume not shortlisted. What should I do? Can I share for review? Yes, you can. इसके बाद I will come to you, Ahmed Maqsood. Okay. लेकिन दो चीज़ें आपने समझनी है. जब आपका रेज्यूमे आ रहा है ना, सबसे पहले वो जा रहा है एक एचआर टीम के पास जो कि टेक्निकली बहुत स्ट्रांग नहीं है. वो सिर्फ कीवर्ड्स ढूंढ रहे हैं. सो जेडी है उनके पास और उनके पास रेज्यूमे है. वो खुद इंजीनियर्स नहीं हैं, वो खुद आईटी प्रोफेशनल्स नहीं हैं. तो वो ढूंढ रहे हैं, मैच कर रहे हैं वो कि अच्छा जेडी में लिखा हुआ है फलाना वर्ड, क्या उसके रेज्यूमे में फलाना वर्ड लिखा हुआ है या नहीं लिखा हुआ. सो द फर्स्ट स्क्रीनिंग या कोई एटीएस सिस्टम भी स्क्रीन कर रहा है वो कीवर्ड से ही स्क्रीन हो रहा है, अनलेस योर रेज्यूमे इज शॉर्टलिस्टेड एंड देन दे मेक अ कॉल टू यू. सो अगर आपका रेज्यूमे उस लेवल पे रिजेक्ट हो रहा है तो यू आर मिसिंग ऑन द कीवर्ड्स. फ्रैंकली अगर सारी चीज़ में मैं सब कुछ करूँ, लुक डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होती है, general presentation ज़्यादा important होती है. However, the most important thing is that you are using the content and the keywords that are reflected in the JD. फिर once it goes to the call and interview stage, then you have a chance to present your resume. But the first impression, the keywords are going to be the game changers. Yes. Any questions? So whoever wants to show me their personal resumes, इसके बाद I will spend 5 minutes on that. उससे पहले कोई एक group questions पूछ रहे हैं तो पूछ लें. मुतायरा. Yes, you can, everyone in the chat, you can raise your hands and ask questions or just type in directly in the chat and we'll ask. Ma'am, I have a question for you. Sure. What if I have two identical work experiences? Like I have been a web developer at ABC company and I've been a web developer at XYZ company. Or दोनों जगह I have done similar work. So how will I present that in my resume? Because फिर वो 3 points they will look redundant. नहीं, आप देखें, ऑफ कोर्स व्हेन यू आर ग्रोइंग इन अ पर्टिकुलर फील्ड आपका थोड़ा सा सिमिलर एक्सपीरियंस होता ही है. यू ग्रो ऑन दैट एक्सपीरियंस. आई एम श्योर देर आर थिंग्स दैट यू डिड मोर. सो फॉर एग्जांपल आप वही वाली मैंने आपको बताया, आप स्टेटिस्टिक्स यूज़ करके बताएंगे आप वेब डेवलपर में हूँ, मेरी वेब डेवलपमेंट से ये फुटप्रिंट में इंक्रीज आया है, उससे रेवेन्यू जनरेशन ये हुई है. एक एक आप अपनी अचीवमेंट के ऊपर एक पे टारगेट कर लें और दूसरे वाले एंड पे आप बताएं कि एग्जैक्टली आपकी जॉब्स एंड ड्यूटीज क्या आती हैं एज अ वेब डेवलपर. सो दैट विल डिस्टिंग्विश. हाउएवर देखिए मेरी बात सुने, अगर आपने तीसरी जॉब भी वेब डेवलपमेंट में ही ढूंढनी है तो इट इज़ एक्चुअली गुड दैट यू आर बिल्डिंग अप ऑन दैट स्किल सेट.
Yes, thank you, ma'am, for your Yeah, answer. so make sure that you're talking about as a web developer, this is what I do. Do में बता दें and then अगले में बता दें कि मेरे ये करने से ये basically फ़र्क पड़ रहा है उस चीज़ में. Yes, ma'am. We have another question in the chat. Yeah. Ahmed Maqsood is asking if you want to switch from some other field to IT side, what should be the best approach? What field? I mean, if you are a medical student and suddenly you decide to come to an IT side, there will be questions. If you're a business student, then it kind of makes more sense because it's a growing field. Teaching. Why don't you share your resume, Ahmed? Give him the rights, and then we can have a direct session with him. I mean, you have to do certifications because IT field is not something जो HR या marketing है जो आप on the job सीख सकते हैं. IT side में आपको technical skills आना ज़रूरी हैं. So if you are serious about switching your industry to something which is technical, then obviously you have to have certifications to show us that you are seriously pursuing that area. So, and this goes for any technical area. अगर आपने switch करना है, अगर आपने law में switch करना है, आपने medicine में switch करना है, तो इसमें आपकी technical skills challenge होंगी और आपने अपनी कोई certification उसमें काम करना शुरू करना है. However, अगर आप marketing या HR area में आ रहे हैं, these are थोड़ी सी ऐसे स्किल्स हैं जो आप ऑन जॉब एक्वायर कर लेते हैं. आपकी पीपल मैनेजमेंट अगर स्किल अच्छे हैं, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छे हैं, तो दीज आर स्किल्स दैट कैन बी लर्नड ऑन जॉब. So the best approach is you start doing some certification which should reflect on your resume. Yes, ma'am. I've asked him and he is ready to present. I think he'll be sharing his screen, sir. मैं बंद कर देती हूँ अपनी स्क्रीन. He can share his screen or he can send it in the chat and I can open it. या वो शेयर कर ले and he can ask me a direct question. Yes, Ahmed, I think you can share the PDF in the chat as well. And I think ma'am can open it. Ma'am, we have received a resume from Mr. Asad as well. Mm. Asa, do you want me to publicly comment on it or do you want a personal reply to this? Ahmed Maqsood ki bhi ma'am resume aa gayi hai. And Asad Okay, is saying you can publicly comment. okay, great. Let me open it. It's downloading. Asad, your resume.
All right, ma'am. I have got it downloaded. Can I share my screen? Yes, please. All right. Is this visible, everyone? जी। अच्छा, पहले आप मुझे बताएं, असद, डिड यू अप्लाई इन द competition? And were you selected or not selected? अच्छा, सबसे पहले तो असद, नाउ नाउ लेट्स, अब ये मैं बिल्कुल अब खुला है तो फर्स्ट इंप्रेशन आपको बता रही हूँ। आपका जो जो हेडर है, ठीक है, आपकी अलाइनमेंट इज़ नॉट करेक्ट। जो शुरू में आपका रहा है, आपका फुल नेम होना चाहिए, उसके नीचे एक साइड पे फ़ोन नंबर, एक साइड पे एड्रेस, मतलब इट्स वेरी हैपहैज़र्ड, एंड बुलेट पॉइंट्स में आपको ऊपर नहीं लिखना चाहिए था। ऊपर आपका बुलेट पॉइंट्स नहीं होने चाहिए थे, ऊपर आपके ये विदाउट बुलेट पॉइंट्स होना चाहिए था। सेकेंडली, यू विल हैव टू स्क्रॉल। एक्चुअली मेरा भी डाउनलोड हो गया, आप अपनी स्क्रीन स्टॉप करें, मैं खुद शेयर करके इसको एक्सप्लेन करती हूँ। Ma'am, he is saying his full name is Asad. दैट्स फाइन। ओके, कैन यू सी माई स्क्रीन नाउ? Yes, जी। ma'am. So what we said initially was there is आपको मैंने क्राइटेरिया दिखाया था, हम लोग what we were giving numbers on. So first of all, मुझे ये alignment नहीं सही लग रही है पूरे इसकी. It should be done in a more aesthetically pleasing way. Good that you shared your LinkedIn profile. Secondly, अगर आपने देखा हो, वहाँ पे 10 marks थे for पर्सनल समरी और प्रोफेशनल समरी, जो आपकी ऊपर आनी चाहिए राइट आफ्टर योर पर्सनल डिटेल्स। इट इज़ वेल ऑर्गेनाइज, इट्स वन पेजर, दैट्स वेरी नाइस। बट ये एक दो चीज़ें थी जो अब मैं आपको देख रही हूँ। अब थर्ड पॉइंट पे आते हैं। यू आर ऑलरेडी वर्किंग। आई वुड एक्सपेक्ट योर प्रोफेशनल एक्सपीरियंस टू गो वेयर योर एजुकेशन इज। ठीक है, योर एजुकेशन कैन कम राइट हेयर बिफोर योर एकेडमिक एक्सपीरियंस। ठीक है, अब गुड दैट यू टोल्ड अस अबाउट फौजी फर्टिलाइजर, ना भी आप बताते तो डजेंट मैटर। दिस इज प्रोसेस स्किल्स कलेक्टेड अपग्रेडेड टेक्निकल इंफॉर्मेशन। ठीक है, गुड, दिस इज अ गुड एक्सप्लेनेशन। ये दोनों पॉइंट आपके अच्छे हैं। रिमोट है तो भी अच्छा, ये रिमोट वाला जो पार्ट है ना, इट शुड हैव कम अंडर, जहाँ पे आप बता रहे हैं एग्जैक्टली आपने क्या काम किया है, इसके नीचे आप एक ब्रैकेट में लिख देते रिमोट। Communication completed, this is, so I like the way you are explaining your whatever you are doing it. So this is actually good. However, ये जो आपके technically जो आपकी formatting issues हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो I like the content part of it, अगर मैं सिर्फ उसको numbering करूँ। फिर आपने यहाँ पे कोई अपने additional skills नहीं ऐड किए हुए। सो फॉर एग्जाम्पल ये आपने किया हुआ है एडिशनल, proficient in MS Office, word stimulator, etc. However, we are looking for the skill, the technical skills and the soft skills that I mentioned, that you're a team player, etc. So these are probably the points जिसकी वजह से you were not shortlisted. Because as you can see, हमारा एक criteria था, हर particular पॉइंट के आगे एक नंबर थे। तो जब आप उसको मैकेनिकली कर रहे होते हैं, तो आपने हर चीज़ को एक नंबर देना होता है, और फिर ऑब्वियसली जिसके नंबर ज़्यादा आते हैं इवेंचुअली वो ही सिलेक्ट हो रहा था। अगर मैं कहूँ कि ये कंपटीशन में ना आता रेज्यूमे, तो इट्स नॉट अ बैड रेज्यूमे। इफ़ यू वर्क ऑन सर्टन फॉर्मेटिंग इश्यूज, थोड़ा सा ऊपर नीचे सही कर लें, तो इट्स गुड। अब एक और मैं इसमें चीज़ देख रही हूँ कि आपका ज़्यादा एक्सपीरियंस है इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग वाली साइड पे। दिस पर्टिकुलर resume was more on the tech side. So I think this is also one of the things that we were looking for. Any particular questions?
अब एक और चीज़, ये जो आपने ऑनलाइन कोर्सेज़ किए हुए हैं, कोर्सिया वगैरह, व्हेन वाज़ द सर्टिफिकेशन कंप्लीटेड? इसके आगे आपको एक ईयर लिखना चाहिए। बट दिस पर्टिकुलर पार्ट, द एक्सप्लेनेशन is this जो मैंने हाइलाइट किया, दिस इज़ गुड। बट द रेस्ट देयर आर लॉट ऑफ फॉर्मेटिंग इश्यूज़ एंड द लेआउट इश्यूज़। Asad, any question that you might have but want to ask? This is also good. These are adjectives and action verbs. Supervise and manage a team of 25 volunteers and provide them it should not be capital, it should be small. But this is a good way to explain what you do. So yeah, it's not a bad CV. It's a अगर आप मुझसे पूछें, I will give it a 7 out of 10 or 6.5 out of 10. और वो भी ज़्यादातर आपकी लेआउट की वजह से होगा। However, this is not a tech resume. Ma'am, he has commented that I can work on this constructive feedback, Oh, and he doesn't have any questions at the moment. okay. Thank you. Thank you so much, Asad. All right, let's do this one. This Okay. is a good resume, but I would love the feedback. I'm gonna be very candid then. Tahir. You want a very brutal reply? Yes, ma'am, sure. Let, सबसे let me पहले, just let me just adjust my chair and I'll be ready for it. All I right. resolved to pursue a career that harmoniously combines my academic aspirations with my genuine. First of all, this is a very cliched and idealist किस्म का professional summary. Professional summary is what you have done in life. It's not more of, this is more of an objective कि आप ज़िंदगी में क्या करना चाहते हो। अब एक ज़माने में ऑब्जेक्टिव लोग लिखते होते थे कि, बट अब ना ज़्यादा आ गया प्रोफेशनल समरी का दौर, जिसमें आप थोड़ा-सा एक रिकैप देते हैं। जैसे किताब नहीं होती, किताब की बैक साइड पे होता है कि किताब में क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुताहिर, फॉर्मेटिंग तो मुझे इसकी ठीक ही लग रही है, जो मोटा-मोटा मैं देख रही हूँ। बट ये जो प्रोफेशनल समरी है ना, इसको चेंज करो। Done. Basically talk about who you are and what you have done rather than what you want to do. ठीक है? नंबर 1 दिस। सेकंडली ये जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, इसको ज़रा स्क्वीज़ करें, इसको ऊपर लेके जाएँ डेवलपर के नीचे, और ये फिर प्रोफेशनल समरी लेके आएँ। इनको स्विच कर दें आपस में। Yes, ma'am. थोड़ा-सा स्क्रॉल डाउन करो। ठीक है, एजुकेशन गुड, ओके, ठीक हो गया। पर्सनल प्रोजेक्ट वेबसाइट बिल्ट यूजिंग, फिर कुछ हुआ उस वेबसाइट को बना के? सेल्स इंक्रीज़ हुई उस वेबसाइट की? कुछ किया आपने? एक और पॉइंट डाल सकते हो। बट दिस इज़ फाइन, दिस इज़ नॉट बैड। नीचे जाते जाएँ। अच्छा, अब मेरी एक बात सुनो, ये जो वर्क एक्सपीरियंस है ना, इसको ऊपर लेके जाओ, पर्सनल प्रोजेक्ट्स को नीचे लेके आओ। All right, ma'am. फिर ये जो जहाँ पे लिख रहे हो ना एसडी ट्रेनी, इधर ये वाला जो एरिया ना, ये जहाँ पे आपने ईयर लिखा हुआ है, ये इसके सामने आना चाहिए। ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे आना चाहिए, इसके सामने आना चाहिए। Yes, ma'am. अगेन यहाँ पे अचीवमेंट टास्क, ऑर्गेनाइज एंड कंडक्टेड मेनी हैंड ऑन सेशन, ठीक है, करंटली वर्किंग टू प्रोवाइड फ्री क्वालिटी एजुकेशन, मे बी वन मोर, इधर एक्शनेबल वर्ड्स आर मिसिंग। Some, the first one is fine, the second one can be improved. ठीक है, सर्टिफिकेशन बिल्कुल Yes, सही है। ma'am. Noted. ये प्रोजेक्ट्स को ना नीचे लेके आओ, वर्क एक्सपीरियंस को ऊपर लेके जाओ। Yes, ma'am. इट्स नॉट अ बैड रिज्यूमे, इट्स अ गुड रिज्यूमे। अगेन अलाइनमेंट नहीं है, यहाँ पे ईयर नीचे है, यहाँ पे नियर सामने है, एक ही तरफ लेके आओ सारे, इस एंड पे, इस एरिया में।
और इनको बुलेट पॉइंट्स कर दो नीचे वाले. This is a 6 out of 10 resume for me. 6.5 maybe. It needs a little improvement. Noted, ma'am. I'll certainly improve on it. Yeah. Okay, Uh, last में किसका है? ma'am, we have Abdul Rahman sharing his resume as well. हाँ, वो बस कर लें, उसके बाद then we'll call it a day. All right, it's downloading. Okay. Uh, all right, is it being shared? जी, it is. फर्स्ट इंप्रेशन क्या आ रहा है? बहुत वाइट स्पेस है. बहुत ज़्यादा बड़ा कंटेंट है. इसको नीचे ज़रा थोड़ा-सा ऐसे स्क्वीज़ करें. Yeah, there's a lot of can you see अब ये बड़ा था, but do you see what I'm saying? It is a lot of white space on your resume. इसको आप इस तरह डिवाइड कर सकते थे किसी टेम्पलेट को यूज़ करके. ये जो सारा ये वाला एरिया है, मैं किस तरह कर सकती हूँ इस पे कमेंट? जो सारा ये आपका है, इनको 2-2 लाइनों में करके यहाँ तक ख़त्म हो जाना चाहिए था. Currently pursuing a BS degree in engineering skill and communication problems and fluent in English with a strong background in handling technical and customer service tasks effectively. Okay, how? That should be the another line that can be added. एक्सपीरियंस आपने बताया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंटर्न का कहाँ पे है, किस टाइम पीरियड में है, क्या करते हैं वहाँ पे आप? एक दो पॉइंट्स तो ऐड करें ना अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में, कि आप यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्न होके क्या सीख रहे हैं. ज़ाहिर बात आप इंटर्न हैं, तब सीख रहे होंगे ना कुछ. 2 मार्क्स वहाँ पे आएँ. फिर एजुकेशन के आगे कोई ईयर नहीं है. सर्टिफिकेशन एंड अवार्ड्स ठीक है, गुड. कब आपको ये मिली है सर्टिफिकेशन? स्किल्स गुड, फाइन, कैन गो एट द एंड. प्रोजेक्ट्स आपके राइट आफ्टर एजुकेशन आने चाहिए थे. अगेन लॉट ऑफ गैप. दिस इज there's too less information for me to really call you for a job interview. For me, it's a 3.5 out of 10 resume. I mean, just it has to add more information. और यहाँ पे देखो फॉन्ट की भी इनकंसिस्टेंसी है. ये सारा ना बुलेट पॉइंट्स है, मतलब इट्स वेरी वेग, इट्स ऑल ओवर द प्लेस वाली चीज़. चीज़ें आपने की हुई हैं, बट अगर आप उसको तरीके से प्रेज़ेंट करें, आई थिंक यू नीड टू लुक इनटू अ टेम्पलेट जो आपकी डिवाइड करे सीवी को ऐसे. एक साइड पे आपकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है और एक साइड पे आपके मेन प्रोजेक्ट्स, एजुकेशन एंड वर्क एक्सपीरियंस है. और वर्क एक्सपीरियंस, सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्न इज़ नॉट वर्क एक्सपीरियंस, दैट्स जस्ट अ टाइटल दैट इज़ देयर. व्हाट डू यू डू एज़ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर इंटर्न? गिव मी 2 पॉइंट्स इन अ बुलेट. And सॉरी. suddenly the chat has went silent, I think. I yeah, so this is what it is, guys. It is very competitive work world out there, and frankly, as a recruiter, अब तो मैं खुद नहीं उस तरह एक्टिवली रिक्रूटमेंट खुद नहीं करती, माई टीम डज इट. बट सिर्फ 20 से 30 सेकंड किसी ने आपका रेज्यूमे देखना है, और इट हैज़ टू गिव यू इंफॉर्मेशन फॉर अस टू मेक दैट कॉल टू यू. ये वाले रेज्यूमेज विल बी स्क्रीनड आउट इवन बिफोर द कॉल्स. बेशक आपने बड़ा कोई कमाल काम किया होगा, बट वो इसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा. ठीक है जी. Yes, ma'am. I am still not over from the crying. क्यों? Just a joke, ma'am. The chat has went silent. If anyone has any questions, Abdul Rahman, do you have any questions? But Mutaya, your resume was not bad. It just needs a little formatting and a better professional summary. That's it. Yes, ma'am. I'll certainly improve on it, and maybe we can discuss that again in the next Yeah, session. if you look at the thing, it's more just
2-3 lines of what you have been doing and how it can add value to someone out there. Yes, It's ma'am. actually tough. Again, देखो resume is just the first knock. वो आपको एक दफ़ा बैरियर क्रॉस करने के बाद आपका सेकंड गेम चेंजर तो इंटरव्यूज ही होते हैं. असद, मुझे आपका यू हैव टू यूज़ अ बेटर टेम्पलेट. फॉर्मेटिंग सेम फॉन्ट यूज़ करो. इतना वाइट स्पेस ना वाइट स्पेस ना छोड़ो. जो 4 लाइनों में अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको 2-2 लाइनों में करो. I actually pondered upon कि we are making the same mistakes. Like जितनी भी resumes हमने आज discuss की हैं, I think if we are consistent on making the same mistakes in our resumes, so we all can work on that. या सिर्फ 2-3 चीज़ों का ख्याल रखें. एक तो इट शुड बी देखने में थोड़ी-सी प्रेज़ेंटेबल होनी चाहिए. अगेन खूबसूरती के आपको थोड़े ही मार्क्स मिलने हैं. जो आपका द वे यू हैव रिटन इट ना, कोशिश करें इंक्रीज़िंगली के स्टैट्स डालें. बताएँ कि आपके ये करने से, सो यू डिड ए टू बी, करने से फ़ायदा क्या हुआ? ये पार्ट ज़रूर ऐड करें. फुटप्रिंट इंक्रीज़ हुआ, ट्रैफ़िक इंक्रीज़ हुई, बग्स कम हो गए. ये पार्ट ज़रूर, द कंटेंट विल स्पीक वॉल्यूम्स. दैट्स इट. थैंक यू सो मच. If anybody wants to reach out to me and set up things, मैं अपना आपको एक इंस्टाग्राम पेज दे देती हूँ where I work as an HR consultant. So you guys can reach to me over there also. और जो लोगो यहाँ पे आ रहा है, ये इंस्टाग्राम का पेज नेम है. इस पे you guys can follow me and you can DM me and ask me questions. ठीक है जी. I've put it up in the chat. Thank you so much, ma'am. I'm just about to follow you over there. Okay. Secondly, I have shared the links to the OG resume building session that we had with Yeah. ma'am Faiza. So everyone in the chat, you can take a look at that. For two parts में divided है. One was for the resume building and the second part was for the ATS, tracking the ATS. So you can also check that out. Thank you so much, ma'am, for giving us your time. And You're welcome. once again, I'll update my resume and get back to you, inshallah. Okay. Thank you so much. Thank you, ma'am. All right, everyone. Thank you so much for joining us. Inshallah, ETL will bring more events जहाँ पे we can discuss all your queries, all your questions. This was part of our career coaching program. So inshallah, we'll bring more of this to you. Thank you so much for joining. Thank you so much for giving your time. Allah Hafiz.